So in last lecture, we have seen the examples based on cover factor. Now, today we'll see the examples based on weaving mechanism. Example based on weaving mechanisms. There are certain weaving mechanisms you are knowing already: shading, picking, beating, set off, take off. So write down this example. This example is based on loom speed. Write down this example. Example is based on loom speed. Okay, I hope you have written this example. So what is the example? Calculate the loom speed if the motor speed is 960 rpm. The pitch dia of pulley on the motor shaft is 8 centimeter and the pitch dia of the pulley on the crankshaft is 35 centimeter. Okay, such type of examples we have already solved, right? In unit number, I think 2, right? Unit number 2 or 3. But we have solved such type of examples. This example is based on gear train, gearing diagram, sorry, gearing calculation. This example is based on gearing calculation. So solve this example and tell me the answer. सॉल्व किया गया
मैंने सॉल्व किया क्या न्यूमेरिकल? यादव, हाँ किया क्या सॉल्व? Yes, sir. Sunny has answered 9. Yes, sir. 219.42. So right, 219.4 राइट आंसर एक्चुअली. वैसे तो एग्जांपल बहुत सिंपल है. You see the example. I don't know why other people are unable to find out what is the problem with them. I don't know. कि फाइनल ईयर खत्म होने को आया फिर भी इस टाइप के एग्जांपल अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, सो कंडीशन इज वेरी हॉरिबल. We can't do anything regarding this. And you are going to give the general aptitude test and technical aptitude test. In technical aptitude test, you will find such type of example, definitely. When you go for the interviews, no, and for technical aptitude test, you will find such type of examples, definitely. How you will solve them? You are unable to solve here. Right. What they ask to calculate the loom speed. And for that they have given the data. If the motor is there, which is running with the speed of 960 rpm, right, and motor pulley will have 8 centimeter diameter, which is connected to the shaft. Sorry, I can write here. So motor pulley, which has a 8 centimeter diameter, and the pitch dia of pulley on crankshaft. So there will be a crankshaft actually. You should know what is crankshaft. You should know what is crankshaft because you know the weaving, know the loom, right? And this crankshaft is connected to the pulley, right? This pulley, which is of 35 centimeter. So 35 centimeter. So this will be connected with the belt drive. यहाँ पे इन्होंने कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है, तो हम तो समझ के चलते हैं कि बेल्ट ड्राइव है. ठीक है, दिस इज योर क्रैंकशाफ्ट. अब लूम का स्पीड पूछा है. लूम का स्पीड किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? इसके ऊपर. और इसका स्पीड किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? मोटर के ऊपर. अब अगर आपको क्रैंकशाफ्ट का स्पीड निकालना है, रोटेशन निकालना है क्रैंकशाफ्ट का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गियर डायग्राम का यूज करना पड़ेगा. राइट, वेरी सिंपल. कैसे करते हैं हम? ड्राइवर अपॉन ड्रिवन रूल यूज करते हैं. राइट, तो लूम स्पीड इज इक्वल टू मोटर आरपीएम into driver upon driven. So this is driver 8 upon driven. This is driven 35. बस इसके आगे जाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि इसी को क्रैंकशाफ्ट कनेक्टेड है. कितना सिंपल था ये. मोटर आरपीएम इज 960 into 8 divided by 35.
when we do this, the speed will come to 219.4 rpm, revolutions per minute. 219.4 rpm is the answer. डिफिकल्ट ऐसा तो कुछ था नहीं. ओके. Write down this example. Write down this example. Okay. So what is the example? If the loom speed is 220 rpm, calculate the time for the single revolution of the crankshaft. So how to calculate? If the loom speed is 220 rpm, calculate the time for the single revolution of the crankshaft. ये भी बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, राइट. लूम स्पीड है 220 आरपीएम, मतलब 1 मिनट में 220 रेवोल्यूशन मारता है. एंड व्हाट दे आस्क, कैलकुलेट द टाइम फॉर द सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट. क्रैंकशाफ्ट का सिंगल रेवोल्यूशन मतलब क्या रहेगा? 1/220. क्योंकि 1 मिनट में 220 रेवोल्यूशन आते हैं तो क्रैंकशाफ्ट 220 रेवोल्यूशन मारता है 1 मिनट में. 1 मिनट में क्रैंकशाफ्ट कितना रेवोल्यूशन जाएगा? 220 रेवोल्यूशन जाएगा, क्योंकि लूम का स्पीड 220 आरपीएम है. तो सिंगल रेवोल्यूशन के लिए कितना लगेगा? कितना टाइम लगेगा? This much time is required, 1/220 minutes. So we can write 60/220. Why 60? Because 1 minute consists of 60 seconds. 60/220. ये आ जाएगा आपका आंसर सेकंड में. 60/220. If you do this, time for single revolution of the crankshaft, you will get the answer. What answer you will get? 0.26. 0.2728. Right. 0.2728 seconds. So this is the answer. 0.2728 seconds required for a single revolution of the crankshaft. Okay. Write down this example.
Okay. So what is the question? In a running loom at 220 picks per minute, the shuttle begins to move at 100 degree past beat up and comes to the rest 225 degree past beat up. How long is the shuttle moving? यहाँ पे और एक चीज चाहिए एक्चुअली, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शटल. यहाँ पे एक चीज दिया नहीं, वो चाहिए यहाँ पे. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शटल. डिस्टेंस traveled by shuttle is 130 centimeter. 130 centimeter. So distance traveled by shuttle is 130 centimeter. तो यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने, वेलोसिटी कितना है, हाउ लॉन्ग इज द शटल मूविंग. शटल का वेलोसिटी कितना है ये पूछा है उन्होंने, मीन वेलोसिटी क्या रहेगा उसका. और उसके लिए उन्होंने क्या दिया है, योर लूम इज रनिंग विथ 220 पिक्स पर मिनट, राइट. And when shuttle actually start to travel 100 degree past beat up and shuttle going to stop at 225 degree past beat up, right. So here what you have to calculate, mean velocity of shuttle. Mean velocity of shuttle you have to calculate, right. तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ मुझे, हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी. Distance upon time. Distance upon time. Right, distance upon time. Distance upon time. So we can able to calculate the velocity by the formula distance upon time. So यहाँ पे distance दिया है, shuttle travels the distance of 130 centimeter. तो distance है, लेकिन time है क्या अपने पास, time नहीं है. अब यहाँ पे time कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम time कैसे निकाल सकते हैं. सर शटल की मूवमेंट पर. मतलब कैसे, तो 1 minute 1 minute में से हाउ मच पिक इंसर्शन टेक्स. 1 मिनट में हम कितना पिक इंसर्ट कर रहे हैं, 220 पिक इंसर्ट कर रहे हैं, 220 पिक इंसर्ट कर रहे हैं. बट एक बात यहाँ पे समझो, जब लूम एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, एक कंप्लीट लूम साइकिल होता है, तो वहां पे शेडिंग भी होता है, पिकिंग भी होता है और बिटिंग भी होता है. ये बात समझ लो, एक लूम साइकिल कंप्लीट हुआ इसका मतलब शेडिंग हुआ, पिकिंग हुआ, बिटिंग हुआ. मतलब शेडिंग को कुछ टाइम लगने वाला है, पिकिंग को कुछ टाइम लगने वाला है और बिटअप को कुछ टाइम लगने वाला है. यहाँ पे अगर हम पिकिंग शटल का वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो अपने को इतना ही मालूम होना चाहिए कि जब शटल स्टार्ट हुआ मूव करने के लिए और जब शटल स्टॉप हुआ मूव करके, उतना ही टाइम आपको चाहिए. और उतना ही टाइम मतलब कौन सा रहता है, पिकिंग टाइम रहता है. उतना ही टाइम मतलब कौन सा रहता है, पिकिंग टाइम रहता है. पिकिंग टाइम में ही शटल आपका मूव करेगा एंड स्टॉप होगा. बाकी का टाइम किसको लगने वाला है, बाकी का टाइम शेडिंग और बिटअप को लगने वाला है. तो जो भी एक कंप्लीट लूम साइकिल हो रहा है, वी कैन से ऑफ 360 डिग्री, तो पूरा 360 डिग्री जो ऑक्यूपाई हो रहा है वो पिकिंग के लिए हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है. वी आर यूटिलाइजिंग इट फॉर शेडिंग एंड बिटिंग आल्सो, राइट. सो हाउ मच डिग्री इज अवेलेबल फॉर पिकिंग, दैट you have to find out first. How much degree is available for picking? So we can find out degree available for picking. How we can find out? Very simple. Degree available for picking is equal to, आपका शटल कब स्टॉप होता है, 225 डिग्री को पास्ट बीटर, और स्टार्ट कब होता है,
100 डिग्री को. So how much degree is available? 225 minus 100. 225 degree minus 100 degree. So how much it is? 125. 125 degree. So 125 degrees available for picking. 125 degrees available for picking here. तो उतना ही टाइम लगने वाला है. 125 डिग्री इतना ही टाइम लगने वाला है, राइट? अब लेकिन आप हमें तो आंसर सेकंड में चाहिए. यहाँ पे टाइम या तो सेकंड में रहेगा, या तो मिनट में रहेगा, या आवर में रहेगा. बट यहाँ पे डिग्री में है टाइम. पिकिंग के लिए 125 डिग्री लगता है. तो हम कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट? कैसे निकाल सकते हैं टाइम, बताओ मुझे. सर थीटा अपन 6p. थीटा अपन 6p. 6p. पिक्स पर मिनट. थीटा अपॉन पिक्स पर मिनट नहीं. थीटा अपन 6 into पिक्स पर मिनट. नहीं. और 1 सेकंड में मूवमेंट कितना हो रहा है? कितना, क्या बोले? 60 divided by 60 second divided by 220. 60 सेकंड डिवाइड बाय 2. उससे क्या पता चलेगा? 1 सेकंड में कितना मूवमेंट हो रहा है सर? और उससे सर हम 360 में 125 डिग्री, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सर. लॉजिक नहीं बता पा रहे हो. थिंकिंग तो सही है, बट कैसा है, देखो अब मैं बताता हूँ आपको. थिंकिंग तो सही था, बट लॉजिक नहीं बता पा रहे हो बराबर. 360 डिग्री मूव होता है, तो उसके लिए टाइम कितना लगता है वो मालूम होना पहले तो जरूरी है, राइट? तो वो कैसे निकाल सकते हैं? टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट लूम साइकिल फॉर 360 डिग्री. टाइम रिक्वायर्ड फॉर अगर हम निकाल पाते हैं कि 360 डिग्री को कितना टाइम लगता है, तो हम इजीली निकाल पाएंगे 125 को कितना लगता है. सीधा सीधा वो क्या रहेगा, आपका प्रोपोर्शन रहेगा. 360 को x सेकंड लगता है, तो 125 को कितना लगेगा. सिंपल. इसलिए हम क्या निकल रहे हैं अभी, 360 डिग्री को कितना टाइम लगता है. टाइम रिक्वायर्ड फॉर 360 डिग्री. एक्चुअली वो क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्रैंकशाफ्ट टू मेक 360 डिग्री, ऐसा रहता है वो. टाइम रिक्वायर्ड फॉर 360 डिग्री कैसे निकाल सकते हैं हम? सिंपल. 60 बाय 220. एक मिनट में 220 रेवोल्यूशन जाता है ना, और एक रेवोल्यूशन मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट. एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, मतलब वो 360 डिग्री से घूमेगा. तो भाई हम निकाल रहे हैं, तो एक रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा, इसका मतलब ही क्या निकाल रहे हैं हम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रेवोल्यूशन. टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रेवोल्यूशन हम निकाल रही है. सो इट विल बी 60 अपॉन 220. Why 60? Because I want answer in second. 60 upon 220. So what is the answer? अभी आपने निकाला था, लास्ट एग्जांपल वही था वो, 0.094 2728. 0.2728 second. So this is time required for 1 revolution, right? So I can write here for 360 degree. For 360 degree, I required a time of
0.2728, then for 125 degree, how much time I required? So we can do the cross multiplication, right? So we can write here so time required for 125 degree is equal to how we can write here, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे 125 इंटू 0.2728 divided by 360 divided by 360. If you do this, you will get the answer, time required for the crankshaft for moving 125 degree. कितना था आंसर? आंसर कितना आता है? इसका आंसर कितना आता है? 0.094. 0.094 चौथा डिजिट, 3 डिजिट ही बताया, चौथा डिजिट 8 sir. हाँ 8. 0.0948 second. So time required for 125 degree is equal to 0.0948. ये 125 डिग्री है क्या? ये एक्चुअल टाइम लगता है पिकिंग के लिए, मतलब उसी टाइम में शटल आपका मूव हो रहा है, उतना ही मूवमेंट कर रहा है शटल, उतना डिग्री का मूवमेंट कर रहा है, बस उतना डिग्री तक ही वो मूवमेंट कर रहा है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा. So the answer what I need, I got here time. So now distance is 130 centimeter and time is 0.0948. What answer you will get? What answer you will get? One 137 137. Yes sir. और किसी का है क्या? Yes, sir. 1371.31. Okay. 13 71.31. Okay. 1371.31. What is the unit? इसका यूनिट क्या है? यूनिट क्या आएगा इसका? सेंटीमीटर per second. सेंटीमीटर पर सेकंड. उसमें क्या बड़ी बात है, इतना टाइम क्यों लगता है आप लोगों को? ये इसका यूनिट है सेंटीमीटर, इसका यूनिट है सेकंड, तो इसका यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर पर सेकंड. आप सोचते रहते हो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट क्या सोचने की क्या जरूरत है, यहाँ पे है ना सब. 130 सेंटीमीटर लिया है, ये सेकंड लिया है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड इज द यूनिट.
नाउ कन्वर्ट इट इनटू kg per hour, सॉरी किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ गया, यहाँ पर खत्म हो गया एग्जाम्पल, यहाँ पे ये एग्जाम्पल खत्म हो गया। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछते हैं कैलकुलेट द मीन वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, तो कैसे निकालोगे अभी बताओ। अगर एग्जाम्पल में अगर एग्जाम में आता है किलोमीटर पर आवर में निकालो आंसर, आपका आंसर तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आ रहा है, आपका आंसर तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आ रहा है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो और बताओ मुझे। कितना आया? $49.4. 49.4 ना? शिवोबड़े 49.4, प्रतिग्रानी 49.4। So 49.4 is right answer. 49.4 is right answer. तो जिनको आया नहीं उनके लिए बताता हूँ मैं कैसे आया था वो। 1371.31 सेंटीमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर करना है आपको, किलोमीटर पर आवर करना है। अब इसको किलोमीटर कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को, तो क्या कर सकते हैं हम, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया मीटर में कन्वर्ट, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये हो गया किलोमीटर में कन्वर्ट। राइट, सेंटीमीटर को पहले मैंने मीटर में किया, डिवाइड बाय 100 किया और फिर उसको किलोमीटर में किया इंटू 1000। राइट, ये हो गया किलोमीटर, ये हो गया किलोमीटर कन्वर्जन। अब बचा सेकंड, बचा सेकंड, ये सेकंड नीचे है ना, ये सेकंड नीचे है, नीचे है सेकंड, इसको करना है आवर में। तो पहले तो इसको मैंने किया मिनट में, फिर इसको मैंने कन्वर्ट किया आवर में, क्योंकि सेकंड है। 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट एंड 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर, ये हो गया। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे फिर हम, 1371.31 डिवाइडेड बाय 100 into 1000 divided by 60 into 60, ये हो गया किलोमीटर पर आवर।
किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व ही करना है खाली। 1371.31 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, इसके 3 और इसके 2, 5, और ये नीचे है, डिवाइडेशन का डिवाइडेशन है तो ये ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, इनटू 16 to 60 3600, ये 16 to 60 is 3600, ये ऊपर जाएगा। So when you do this, you will get answer 49.4 किलोमीटर पर आवर, 49.4 किलोमीटर पर आवर। तो अगर एग्जाम में ऐसा पूछते किलोमीटर पर आवर में, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। कन्वर्जन फैक्टर्स वगैरह सब करना ही है, इसमें कुछ ये नहीं है। ओके, तो इस तरीके से इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। आगे रखते हैं, अभी यहाँ पे निकाला है 49.39 किलोमीटर पर आवर। Write down this example. Okay. So what is the question? A loom of reed width 114 centimeter runs at 200 picks per minute. At what speed would a wider loom of reed width 228 centimeter run? 114 सेंटीमीटर रीड विड्थ का जो लूम है वो 200 पिक्स पर मिनट पे चलता है, तो 228 का कितने पे चलेगा, कितने पिक्स पे चलेगा। आगे प्रोपोर्शनलिटी का एग्जांपल है, प्रोपोर्शनलिटी का एग्जांपल है। इसमें आपको मैं एक हिंट देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर आप प्रोपोर्शनलिटी ले लोगे तो डायरेक्टली क्या लोगे, 114 इज इक्वल टू 200, तो 228 को कितना, तो इसमें आपका गलती हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, जो आपका लूम स्पीड है that is inversely proportional to the square root of the reed width. What is the hint? Loom speed is inversely proportional to the square root of the reed width. उसको कंसिडर करके निकालो। क्या बताया मैंने, लूम स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रीड विड्थ। So square root of the reed width, that is most important, and then solve and tell me the answer.
कितना था आंसर? मैंने आपको हिंट बताया है, लूम स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रीड विड्थ। ओके शिवानी, 141 इज द राइट आंसर। ये देखो फिर आप यहाँ पे कैसे निकालते हैं। अगर नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं तो कैसे करते हैं? 114 लूम विड्थ को 200 पिक्स पर मिनट आ रहे हैं, तो 228 रीड विड्थ को कितना पिक्स आएगा, ऐसा करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन हमने क्या बोला आपको, लूम स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रीड विड्थ। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लिखेंगे कैसे? वो भी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द रीड विड्थ है। सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन 114 तो 200 पिक्स आ रहे हैं पिक्स पर मिनट, तो 228 को कितना, 228 को कितना पिक्स पर मिनट हम निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वन 114 इंटू क्वेश्चन मार्क, मैं क्वेश्चन मार्क देता हूँ बट आप वहाँ पे लिखा करो पिक्स पर मिनट इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा बच्चे एग्जाम में भी क्वेश्चन मार्क ही डाल देते हैं वहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो 200 to 8, so like this. Now this question mark pics per minute is equal to 200 into 1 upon 228। अब ये इस साइड में जाएगा तो कैसे जाएगा, उल्टा होके जाएगा, ये इस साइड में जाएगा तो इक्वल साइन के, दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स। 114 डिवाइडेड बाय 1, ये 1 अपॉन 114 था, स्क्वायर रूट ऑफ इस साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 114 बाय 1 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या है अभी, 200 इंटू 1 को लेते नहीं हम, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई 1 विल रिमेन सेम, इंटू 114 डिवाइडेड बाय नीचे कौन बचे 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 228। When you do this, you will get the answer, and the answer is 141 pics per minute. Pics per minute. अगर वेब इंसर्शन रेट निकालने के लिए पूछेंगे तो कैसे करोगे आप? अगर आपको उन्होंने पूछा कि वेब इंसर्शन रेट निकालो दोनों लूम का, 114 का भी और 228 का भी, कैसे निकालोगे? वेब इंसर्शन रेट का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, पिक्स पर मिनट और लूम स्पीड, पिक्स पर मिनट और वी कैन से लूम स्पीड इंटू रीड विड्थ, इंटू रीड विड्थ, ये फॉर्मूला था, पिक्स पर मिनट इंटू रीड विड्थ। अब 114 लूम के लिए रीड विड्थ क्या है, 114, और पिक्स पर मिनट क्या है 141। अभी अभी हमने निकाला ना पिक्स पर मिनट 141,
So when you do this, you will get the answer. और 228 के लिए वेव ट्रांसलेशन रेट निकालना है तो 228 के लिए रीड विड्थ इज 228 एंड लूम स्पीड इज या पिक्स पर मिनट इज 141. सो वाइडर लूम के लिए रेट कितना आएगा? तो नैरोर के लिए आता है 228 मीटर्स पर मिनट और वाइडर के लिए कितना आता है? वाइडर के लिए 321 मीटर्स पर मिनट. तो ये वाइडर के लिए, ये नैरोर के लिए. तो एग्जाम में अगर वेव ट्रांसलेशन रेट पूछते हैं तो इस तरीके से निकालना है. वेव ट्रांसलेशन रेट के ऊपर ऑलरेडी हमने एग्जांपल देख लिए लास्ट यूनिट में, तो आपको वो पता है. वेव ट्रांसलेशन रेट इसके पहले भी हमने निकाले हैं. So this is the solution. So we'll stop here today. The remaining examples we'll see in next lecture.